السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نیک ماں کا واقعہ سنائیں گے۔ وہ ماں جو نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور اس کا بچہ جلتے ہوئے تندور میں گر کر مر جاتا ہے۔ اس کا شرابی شوہر اسے طعنہ دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ دلی کی ایک لڑکی کا ہے۔ دلی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی نیک، با پردہ اور با اخلاق، روزہ اور نماز کی پابند تھی۔ یہ اللہ کی نیک بندی نماز سے اس قدر محبت کرتی تھی کہ جب بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تو اس میں اتنی مگن اور ڈوب جاتی تھی کہ اسے دنیا اور اپنے ارد گرد کی کچھ بھی پرواہ اور خبر نہیں رہتی تھی۔ وہ روحانیت کے احساس میں ڈوب کر نماز ادا کرتی تھی۔ اس اللہ کی نیک بندی کے اپنے محلے اور رشتہ داروں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ چھوٹی بچیوں کو قرآن پڑھاتی اور انہیں نماز کی تعلیم دیتی، اور اگر اس اللہ کی نیک بندی کو نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے محلے میں کسی کے گھر بھی بلایا جاتا تو یہ وہاں جانے میں بھی شرم محسوس نہ کرتی تھی۔ نماز اور قرآن کی تعلیم کو سچے دل سے پھیلانے کی کوشش کرتی۔ یہ اللہ کی بندی غریب گھر کی بیٹی تھی، لیکن اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے خوب نواز رکھا تھا۔ اسی طرح ایک دن اس لڑکی کی شادی ہوئی تو وہ مائکے سے رخصت ہو کر سسرال میں آ گئی۔ اس اللہ کی نیک بندی نے شادی کی رات میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا اور اس نے نماز ادا کی۔ جب اس نیک لڑکی نے اپنے شوہر کو جگایا اور نماز پڑھنے کو کہا تو وہ غصے میں اسے بول پڑا کہ مجھے کیوں اٹھایا ہے؟ میں سو رہا تھا، میری نیند خراب کیوں کی ہے؟ تم ہی پڑھو نماز، تمہاری نماز تمہیں ہی مبارک ہو، مجھے تو اپنی نیند ہی زیادہ عزیز ہے۔ وہ بدبخت یہ کہہ کر دوبارہ سو گیا۔ اس کے دل میں نماز کے لیے ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ شخص نہایت عیاش اور عباس قسم کا شخص تھا۔ وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر بہت ہی حیران اور پریشان اور اداس ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی اور اس کی بہت عزت کرتی تھی، اور نماز میں بھی اپنے شوہر کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے اور اسے نماز کا پابند اور نیک بنا دے۔ ابھی اس نیک لڑکی کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسے یہ بات سن کر ایک زوردار دھکا لگا کہ اس کا شوہر جوا کھیلتا ہے۔ وہ جوا بھی کھیلتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، اور ابھی تک تو وہ نئی نویلی دلہن تھی اور اتنی ہی تھوڑے عرصے میں اپنے شوہر کے تمام بری عادتوں سے واقف ہو چکی تھی۔ لیکن اس پر دکھوں کا پہاڑ اس وقت ٹوٹا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ میرا شوہر جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے اور جوئے کا حرام پیسہ گھر میں لے کر آتا ہے۔ اس کا شوہر شام کو جب گھر واپس آیا تو وہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اس سے فریاد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو قسم ہے، آپ جوئے اور شراب جیسے حرام کاموں سے توبہ کر لیجئے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ آج تک آپ نے جتنے بھی غلط کام کیے ہیں ان سے اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے ہمیں اس میں راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ زیادہ اور اچھے کی چاہت میں آپ حرام راستہ اختیار مت کرو۔ میں اس غربت میں ہی خوش ہوں اور راضی ہوں۔ خدا کے واسطے آپ جوئے کا حرام لقمہ نہ خود کھائیں اور نہ ہی مجھے کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی نیک بیوی پر ذرا برابر بھی رحم نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نیک لڑکی دن رات نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی نرم دلی اور اس کی ہدایت کی دعائیں کرتی۔ یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب دن بدن اس نیک لڑکی کی زندگی عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس غریب لڑکی کے غریب باپ نے اپنی بیٹی کی شادی پر اپنی زندگی بھر کی محنت مشقت سے جو کچھ بھی کمایا تھا، جو کچھ بھی جمع پونجی جمع کی تھی، اس سے زیور بنا کر بیٹی کو دے کر سسرال رخصت کیا تھا۔
उस जालिम शौहर ने अपनी बीवी का वो जेवर भी न छोड़ा, उससे छीन कर ले गया और वो जेवर भी जुए में हार गया। लेकिन उस नेक बीवी ने उस पर भी सब्र किया और अल्लाह ताला से यही दुआ करती रही कि ए अल्लाह, मेरे शौहर को नेकी की हिदायत दे दे, इसके दिल में तेरी मोहब्बत और फर्मा बरदारी डाल दे। शौहर की पत्थर दिली हराम कामों में 1 साल का अरसा गुजर गया। उस नेक लड़की को अल्लाह पाक ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा। उस नेक माँ ने जब अपने बच्चे का चेहरा देखा, जैसे कि वो पुराने सभी गम भूल चुकी हो। चांद से बेटे को पाकर उस नेक माँ का दिल हल्का हो गया था। लेकिन वो बदबख्त शौहर जो अब बाप बन चुका था, उसमें बिल्कुल भी एहसास जिम्मेदारी ना आई थी। वो शादी के पहले दिन से लेकर अब तक वैसा ही था, वही जुआ खेलना और वही शराब पीना। उसकी आदतों में जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था। वो अल्लाह की नेकबंदी नमाज पढ़ती और रो रो कर दुआएं करती। वो कहती, या अल्लाह, मेरे शौहर का दिल बदल दे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए इसके दिल में मोहब्बत डाल दे, वो इन तमाम गुनाहों से तौबा कर ले। अपने शौहर को भी बार बार समझाती थी कि अल्लाह ताला ने नमाज को हर मुसलमान पर फर्ज किया है। नमाज हर मर्द औरत पर फर्ज है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का दोस्त है और नमाज ही इंसान को जन्नत में लेकर जाएगी। लेकिन इस पर अपनी नेक बीवी की बातों का कोई असर ना होता। वो जालिम शौहर जब भी अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ते देखता तो उसे उसका ताना देता। वो कहता कि क्या फायदा तुम्हारी इस नमाज का, तुम्हारी नमाज ने, तुम्हारी दुआओं ने हमारे दिन तो कोई ना बदले, हम अमीर तो नहीं हुए, तो ये नमाज क्यों पढ़ती है? नमाज से ना तो गुर्बत दूर होती है और ना ही दिन बदलते हैं। वो शख्स ये कुफराने जुमले बोलकर फिर शराब और जुआ खेलने के लिए घर से निकल जाता। अपने शौहर के दिल को चीर देने वाले ये अल्फाज सुनकर वो नेक बीवी तड़प कर रह जाती और अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर उसकी हिदायत के लिए दुआ करती। गुर्बत, शौहर की लापरवाही और उसकी बेरुखी में इसी तरह 3 साल का अरसा गुजर गया। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था, 3 साल का हो गया था, चलने फिरने लगा था और अपने शराबी बाप को बाबा बाबा कहकर पुकारने लगा था। लेकिन वो बदबख्त बाप तो हर वक्त ही शराब के नशे में धुत रहता था। जैसे ही कुछ होश में आता तो अपनी नेक बीवी को नमाज पढ़ने के ताने देता। उसे ना तो घर की कुछ परवाह थी और ना ही घर में रहने वालों की। इस तरह एक दिन हस्बे मालूम वो नेक औरत सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठी, सहन में आई और तंदूर में लकड़ियां डाल दी, इसमें आग लगा दी। आग भड़कने लगी तो उसने सोचा कि मैं तब तक फजर की नमाज अदा कर लेती हूँ। वो वजू खाने में जाती है, वजू करती है, वजू करके जो नमाज बिछाई और उस पर खड़ी होकर नियत बांध ली और अल्लाह की इबादत में मसरूफ हो गई। वो नेक बंदी नमाज में मगन हो गई। वो अभी नमाज अदा कर ही रही थी कि इतने में उसका लाडला, उसका बेटा रोता हुआ कमरे से बाहर सहन में आ गया। उसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसके कानों में अपने बच्चे की आवाज ही ना पड़ी। वो मासूम बच्चा रोता हुआ सहन तक आ गया। उसकी नेक माँ नमाज में इस कदर मशगूल थी कि उसको होश ही न थी कि मेरा बेटा रोता हुआ तंदूर की तरफ बढ़ रहा है। वो बच्चा माँ को ढूंढता हुआ जैसे ही सहन में आया तो उसने जलती हुई आग की रोशनी देखी और बच्चे तो मासूम बच्चा ही होता है, आग को खेलने की चीज समझ बैठा और तंदूर की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ पर उसकी नेक माँ नमाज पढ़ रही थी और वहाँ पर उसका लाडला बेटा आग को पकड़ते हुए जलते हुए तंदूर में जा गिरा। वो मासूम बच्चा जलते हुए तंदूर में चीख पुकार करने लगा, लेकिन उसकी माँ जो की नमाज में इस कदर मसरूफ थी कि उसके कानों में बच्चे की एक चीख तक न सुनाई दी। वो मासूम बच्चा इस कदर तकलीफ और दर्द से चिल्ला रहा था कि उसकी चीख की आवाज सुनकर उसका सोया हुआ शराबी बाप कमरे से बाहर सहन में आ गया। जब बाप ने मासूम बच्चे को तंदूर में जलते हुए देखा तो वो बाप भी तड़प कर रह गया। आखिरकार अपने खून को जलता देखकर उस बाप से भी न रह गया और जलते हुए तंदूर में इसने अपने हाथों की मदद से अपने बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लिया। बच्चे को तंदूर से निकालते वक्त उसके बाप के दोनों हाथ बुरी तरह जल गए और चेहरा भी झुलस गया था। लेकिन अफसोस वो अपने मासूम बच्चे को ना बचा सका। बच्चा बेदर्दी से जलकर मर चुका था।
मासूम बच्चे की लाश देखकर बाप का दिल भी भर आया, नरम हो गया। वो अपने बेटे को अपनी गोद में लिए रोने लगा। माँ सजदे में थी और बच्चा मर चुका था। उधर जब माँ ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा और सलाम फेरते ही जब उसकी नजर अपने बच्चे की जली हुई लाश पर पड़ी तो जैसे उस माँ पर आसमान से बिजली गिर पड़ी हो और जमीन फट गई हो। शौहर ने जब अपनी बीवी को देखा तो इस कदर गुस्से में आ गया और उसे कहने लगा, तेरी नमाज ने तुझे अच्छा सिला दिया है, तेरे अल्लाह ने तुझे तेरी नमाज का अच्छा इनाम दिया है। तेरी इस नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली है। तू ही बता, तेरी इस नमाज का क्या सिला मिला है, तुझे क्या इनाम मिला है, तुझे कि तू बे औलाद हो गई है। बीवी ने जब शौहर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उस पर बिजली सी गिर पड़ी। वो दोनों हाथ बांधकर मुसल्ले पर खड़ी थी और शौहर के ताने भी सुन रही थी। बस फिर क्या था, उस अल्लाह की बंदी ने दरबार इलाही में अपने हाथ उठा दिए और अल्लाह के हुजूर फरियाद करने लगी कि ए मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मैं तो तेरे करम के साथ सोई थी। मेरे अल्लाह, तूने तो मेरी गोद ही उजाड़ दी। ए मेरे अल्लाह, मेरा शौहर मुझे मेरी इस नमाज का ताना दे रहा है कि मेरी नमाज ने मेरे बच्चे की जान ले ली। मेरे अल्लाह, तूने आज तक मुझे जिस हाल में भी रखा, मैंने तुझसे कभी गिला नहीं किया, कभी शिकवा नहीं किया, हमेशा तेरी रजा पर राजी रही। ए मेरे अल्लाह, तू मेरी इस नमाज के लाज रख ले। आज अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके मौजज़ा दिखा दे। मेरी नमाज की लाज रख ले, मेरे इन उठे हाथों की लाज रख ले। बस फिर इस नेक बंदी का इतना ही कहना था कि आसमान पर घने बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और फिर अल्लाह ताला की रहमत आसमान से बरसी और आसमान से बारिश शुरू हो गई। इस रहमत ने अल्लाह के हुक्म से वो मौजज़ा दिखा दिया। जैसे ही बारिश के कतरे जले हुए बच्चे के इस जिस्म पर पड़े, अल्लाहु अकबर, बच्चा जिंदा होकर बैठ गया और वो बच्चा माँ माँ पुकारता हुआ जाकर माँ के गले से लग गया। माँ ने भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर ठंडक महसूस की और उसे खूब प्यार किया। जब इस नेक औरत के शौहर ने ये मंजर देखा तो वो कलमा पढ़ता हुआ सजदे में गिर गया। वो जोर जोर से तकबीर कहने लगा, रो रो कर सजदे में अल्लाह ताला से माफी मांगने लगा। वो कहने लगा, ए मेरे रब, मैं किस कदर गाफिल, नादान और लापरवाह था। आज मैं अपने तमाम बुरे कामों से तौबा करता हूँ। ए मेरे अल्लाह, तू तो रहमान है, रहीम है, मेरी इन खताओं को माफ फरमा दे। तूने मुझे हिदायत अता की है। ए मेरे अल्लाह, आज से मैं वादा करता हूँ मैं 5 वक्त की नमाज अदा करूँगा। इसके बाद उस शख्स ने अपनी नेक बीवी से भी माफी मांगी कि मैंने आज तक तुझे दुख तकलीफ और तेरी नमाज का ताना दिया और आज तेरी इसी नमाज के सदके अल्लाह ने मेरी औलाद की जिंदगी बख्श दी और मुझे भी हिदायत अता कर दी। वो अपने किए पर शर्मिंदा था, अब वो शैतान से अल्लाह का बंदा बन गया था। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों की दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने का आदी बना दे और ए मेरे अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जो तुझे पसंद है। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को नेकी और सवाब की नीयत से आगे दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।